So in this lecture we'll see the PCA solved example. As we saw in last lecture, the basic concept of PCA, principal component analysis. So here we'll see the example based on this. So here suppose these two attributes are given, that is x and y, and values of that attributes are given. So 10 values here already given. Okay, suppose x की value given है 2.5, for that y value is given as 2.4, for 0.5 x value 0.7 y value is given. Okay, so what is the step 1 over here? So in step 1 we have to separately find out the mean of this x and y. ठीक है, सो मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार एंड वाई बार. सो एक्स बार की मीन क्या निकली है, दैट इज़ 1.81. सो एक्स बार की मीन क्या है 1.81 एंड वाई बार की मीन, वाई की मीन क्या है 1.91. सो दिस इज़ द स्टेप 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and these values are also very important that you can see next. ठीक है, now in step 2 what we have to do, we have to find out the covariance matrix. ठीक है, C stands for the covariance matrix. So how we can find out the covariance matrix? So there is one formula by which we can find it out. So this is the covariance of x comma y is equals to I is equals to 1 to n xi minus x bar yi minus y bar divided by n minus 1. So what is n over here? So there are how many number of attributes given in this example? That is nothing but the n value. ठीक है, सो कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 values are given. So what is the value of n over here? That is 10. Clear? So I is equals to 1 to 10. ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ दिस x and for each and every value of that y, and x bar and y bar value we have already calculated, which we have to consider same for all. ठीक है, now next this is the covariance matrix that we have to find out. So how we can find out? That is covariance of x comma x, covariance of x comma y, covariance of y comma x, covariance of y comma y. Now here the covariance of x comma y and y comma x is same. ओके, बिकॉज ओनली एट्रीब्यूट्स आर गेट्स एक्सचेंज, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, नाउ यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, इसीलिए कोवेरियंस मैट्रिक्स कितने की बनी 2/2 की बनी. राइट, अगर 3 एट्रीब्यूट्स रहते तो ये कितनी इसकी बनती थी 3/3 की. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस कोवेरियंस, दैट इज कोवेरियंस ऑफ x कॉमा x, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y एंड कोवेरियंस ऑफ y कॉमा y. इसकी वैल्यू हमें थ्रू दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो पहले हम लोग निकालते हैं कोवेरियंस ऑफ दिस x कॉमा x. ठीक है, सो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूला में अगर रखते तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जगह पे क्या चले जाएंगे, x x चले जाएंगे. राइट, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दिस x माइनस एक्स बार हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार. राइट, तो इसीलिए हमने क्या किया, x की दो वैल्यूज़ यहाँ से कंसीडर की. सपोज 2.5 कंसीडर किया एंड 0.5. सो फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 2.5, उसके लिए हम लोग निकालते हैं. तो पहले वी हैव टू कैलकुलेट x माइनस एक्स बार. राइट, so what is the value of x? That is 2.5. Now what is the value of x bar? That we have calculated mean as 1.85. So x value is 2.5 minus 1.81, that becomes 0.69. Okay, so this is the value of x minus x bar. Now what we want, x minus x bar multiplied by x minus x bar. So x minus x bar multiplied by x minus x bar. So इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो we get this value. Clear? Same we have calculated for 0.5. So 0.5 minus 1.81, it becomes like this. एंड इसी को इससे मल्टीप्लाई करते तो वी गेट दिस वैल्यू. क्लियर? तो ये क्या करना है हमें, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स दिस वी हैव टू फाइंड आउट. जैसे 10 वैल्यूज़ है एक्स के, तो 10 वैल्यू के लिए हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी. और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लास्ट कॉलम है उसकी सम करनी है, सम.
सो जो भी लास्ट कॉलम है ये, इसकी सम करनी है, तो इसकी सम क्या आएगी 5.5490. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस अपर साइड, दैट इज़ 5.5490. नाउ डिवाइडेड बाय n-1. सो n की वैल्यू क्या है 10 -1 मीन्स 9. सो दिस वी हैव टू डिवाइड बाय 9. So 5.5490 divided by 9, it becomes 0.6169. So इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है 0.6169. क्लियर. नाउ सेम वे से हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ y, y. सो कोवेरियंस ऑफ y, y कैसे निकालेंगे, फिर से दिस एक्स वाई के जगह पे क्या जाएगा, वाई वाई चला जाएगा, राइट. सो वाई की वैल्यूज़ हमें कंसीडर करनी होगी. सो वाई की 2.4 एंड 0.7 हमने वैल्यूज़ कंसीडर की. अभी वाई माइनस वाई वन कैसे हो जाएगा, 2.4 माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है 1.91. सो 2.4 माइनस 1.91 इट बिकम 0.49. और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2401. सो सेम वे से फॉर दिस, ठीक है. सेम वे से इसका भी हमें क्या करना होगा, लास्ट जो है कॉलम, ये वैल्यूज़ जो है हमें 10 वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करनी होगी. फॉर 10 वैल्यूज़ ऑफ वाई ये वैल्यू हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी. देन उसके बाद उसका सम करेंगे हम लोग लास्ट कॉलम का, दैट सम बिकम 6.6449. ठीक है. फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी, राइट. नाउ डिवाइडेड बाय n-1 मीन्स डिवाइडेड बाय 9 करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू किसकी हमें मिल जाएंगी, कोवेरियंस ऑफ y, y. सो कोवेरियंस ऑफ y, y के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे हम लोग 0.7165. सेम वे से हमें क्या निकालनी है, कोवेरियंस ऑफ x, y की वैल्यू. नो कोवेरियंस ऑफ x, y के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए और y माइनस वाई बार चाहिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन. तो सेम वैल्यूज़ हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ के. तो हमें पता है x माइनस एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, तो यही हमने यहाँ पे कंसीडर की है. y माइनस वाई बार की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो यही हमने यहाँ पे कंसीडर की है. और उसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये होगा. क्लियर. तो सेम वी हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ दिस सेट, दैट इज़ 10 वैल्यूज़ के लिए. उसके बाद लास्ट कॉलम की सम करेंगे, उसकी सम क्या निकलेंगी 5.5390. फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमें क्या मिलेंगी वैल्यू 0.6154. तो दोनों जगह पे सेम वैल्यू जाएगी, राइट. सो हमें क्या मिल गई अभी, कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें मिल गया. नाउ उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड वन कि हमें क्या मिल गया अभी, कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल गया. नाउ थर्ड स्टेप इज़ व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ इजन वैल्यूज़ एंड इजन वेक्टर. ठीक है. सो इजन वैल्यू एंड इजन वेक्टर निकालने के लिए वी आर सीइंग ओवर हियर द वेरी बेसिक थिंग्स और वेरी सिंपल वे से हम लोग ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कंसीडर करेंगे टू फाइंड आउट द इजन वैल्यू, दैट इज c माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0. एज वी नो c इज द कोवेरियंस that we have already calculated, lambda is the eigen value that we have to calculate, and I is the identity matrix. Okay, and is equals to 0. तो हम लोग इसके जगह पे इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, जैसे कोवेरियंस के जगह पे कोवेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू रखते हैं. सो इट बिकम्स लाइक दिस, माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अभी इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम लाइक दिस. ठीक है. नाउ इसके ऊपर से हम लोग अभी क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, सो अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दैट वैल्यू बिकम्स दिस. ठीक है. अभी ये क्या मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बाय टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़, दैट इज़ लैम्डा एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू दिस 2 वैल्यूज़. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें ये 2 वैल्यूज़ निकलेंगे. अभी दिज आर द इजन वैल्यूज़, दिज आर द 2 इजन वैल्यूज़ दैट वी गॉट. तो हमें अभी नेक्स्ट क्या चाहिए, इजन वेक्टर चाहिए फॉर दिस 2 इजन वैल्यूज़. ठीक है. तो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इजन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है.
नाउ इजन वेक्टर यहाँ पे अभी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हम लोग सिंपल कंसेप्ट यूज़ करेंगे, सिंपल फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सी वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी. सो वी स्टैंड्स फॉर इजन वेक्टर ओवर हियर. ठीक है, तो हम लोग पहले इस इजन वैल्यू 1 के लिए ये इजन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इजन वैल्यू 1 हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज लैम्डा 1 कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में डालेंगे सी वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी. ठीक है, तो सी की वैल्यू दैट इज कोवेरियंस मैट्रिक्स वी हैव टू कंसीडर. वी दैट इज नथिंग बट दैट attributes, that is x1 y1 is equals to that value, lambda value we have to consider it as this one 0.0490 and x1 y1. ठीक है, now इसे अगर हम लोग सॉल्व करते तो कैसे होगा, 0.61 इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट. सो 0.6165 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 0.6154 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज इक्वल्स टू 0.0490 multiplied by x1. Same here, 0.6154 multiplied by x1 plus 0.7165 multiplied by y1 is equals to this. इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू हम लोग अगर इस तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, x1 तो x1 से x1 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, like this 0.5674 x1 is equals to minus 0.6154 y1 हो जाएगा. सेम इसको अगर y1 की वैल्यू कंसिडर करते तो ये मिल जाएगा हमें, राइट. सो ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ये दोनों मिल गए, अभी इसके ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x1. तो अभी x1 की वैल्यू अगर इस पे से निकालते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय y1. तो दिस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस अगर हम लोग करते तो वी गेट द वैल्यू लाइक दिस. सो ठीक है, सो ये हमें वैल्यू मिली x1 की. हमने क्या किया, सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू क्या किया, ये वैल्यू जो है इसके डिविडेंड में डाल दी मल्टीप्लाइड बाय y1. तो इसका डिवीजन जो भी है वो ये वैल्यू आती है. ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में डिनोट करेंगे. सो टेम्पररी इस y1 की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे 1. सो इसकी वैल्यू एज इट इज़ रखी -1, x1 की वैल्यू एज इट इज़ रखी, दैट इज़ -10845 एंड y1 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, 1 कंसीडर की. ठीक है, नाउ इससे हम लोग अभी सॉल्व कैसे करेंगे, सो सी हियर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे और इसकी एडिशन करेंगे. ठीक है, अभी इसका स्क्वायर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका स्क्वायर आता है ये, इसका स्क्वायर आता है ये, इसकी एडिशन की, इसका एडिशन करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिया, सो वी गेट दिस वैल्यू. ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मिली हुई हमें, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है. ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. ठीक है, नाउ 1 को अगर इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू. सो दीज आर द फाइनल इजन वेक्टर फॉर इजन वैल्यू 0.0490. इस इजन वैल्यू के लिए दीज आर द 2 इजन वेक्टर, दैट इज x1 and y1. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इजन वेक्टर फॉर दिस इजन वैल्यू, दैट इज 1.2840. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसे कैलकुलेट करेंगे. सो हियर x2 इज इक्वल्स टू आ जाता है 0.92194 y2, यह आ जाता है बाय दिस वे. ऐसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, इसी वे से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, बिकॉज हियर वी हैव टू कंसीडर व्हाट वैल्यू 1.2840 ये वैल्यू कंसीडर करनी होगी. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. सो इससे हम लोग क्या करेंगे, फिर से x2 की वैल्यू सेम रखेंगे, y2 की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे. इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कंसीडर करेंगे, स्क्वायर करके उसे ऐड करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू मिलेंगे. इस वैल्यू को फिर से इस पर्टिकुलर वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू मिलेंगे. सो दीज आर द इजन वेक्टर्स फॉर λ2. Clear? This is all about how to solve the PCA problem.
I hope you understood this. So we are going to stop over here.